Assalamualaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel Mathematical Mysteries. Dear students, in today's lecture we are not going to discuss anything related to differential equations, right? Today we will discuss something about the complex numbers, right? All of you must be familiar with complex numbers, okay? So in today's lecture we will see that what is the argument of the complex number and what is the principal argument of the complex number and how to calculate the argument and the principal argument of the complex number, and we will also see that what are the properties of the principal argument of the complex number, and then at the end of the lecture we will discuss some questions related to the principal argument of the complex number. Okay, so let's start the today's lecture. We will start with the definition of the argument of the complex number. Okay, dear students, let us consider that I am given with the complex number z equals to 2 plus 3 iota. ठीक है, इसी तरह से रिप्रेजेंट करके इसी तरह से लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है, यानी कि इन जनरल आप इसको इस तरह से लिखते हो x इक्वल्स x प्लस आयोटा y. ठीक है, ऐसे ही करते हो. ठीक है, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो पार्ट्स होते हैं ना. ठीक है, इस पार्ट को आप कहते हो कि ये इसका रियल पार्ट है. ठीक है, इसको क्या कहते हो, ये आपका है रियल पार्ट. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो, जो कि आयोटा के साथ लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो इसको आप बोलते हो कि ये आपका है इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, ठीक हो गया. तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू represent a complex number in a complex plane we have to draw two perpendicular lines. ठीक है, इसमें जो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज द रियल एक्सिस. ठीक है, दिस इज द रियल एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, इसको क्या बोलते हो, इमेजिनरी एक्सिस. ठीक हो गया. अब जो रियल एक्सिस है उस पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, उस पे आप रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हो, और जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पे क्या रिप्रेजेंट करते हो, उस पे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. For example, consider this complex number 2 plus 3 iota. Okay, I want to represent this complex number on the in this complex plane. Right now, as you can see that my real part is 2. Right, so I will move 2 units from the origin, 1 and 2. Right, this is my real part. And what is my imaginary part? My imaginary part is 3. So I will move 3 units from the origin. So this is my 3. ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है, इट इज पॉइंट P. ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर 2 and 3. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, अब आप क्या करो कि इस पॉइंट P को इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दें. ठीक है, इस पॉइंट P को आप इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें. ठीक है, तो ये जो आपके पास जो वेक्टर बना, वेक्टर OP, दिस वेक्टर OP इज रिप्रेजेंटिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 3 iota. इज दैट क्लियर? यानी कि ये जो वेक्टर OP है, इट इज द रिप्रेजेंटिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 3 iota in the complex plane. Okay, this way of representing the complex number in a complex plane is known as Argand's diagram. Argand's diagram. ठीक है, in the diagram you are using which you are using to represent the complex number in a complex plane is known as Argand's diagram. Dear students, now you can see that कि अब ये जो वेक्टर OP है ये रियल एक्सिस के साथ एक एंगल भी बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको मैं कह रही हूँ थीटा. ठीक है,
तो ये जो थीटा है इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. बेसिकली इट इज शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाई the angle theta which the complex number is making in an anti-clockwise direction with the real axis is known as argument of the complex number. Right? मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. ठीक है. How can you define the argument of the complex number? The angle which the complex number make with the real axis, okay, with the real axis in the anti-clockwise direction while representing the complex number in a complex plane is known as the argument of the complex number. Okay, is that clear? Dear students, the argument of the complex number varies from 0 to 2 pi. यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में क्या है कि वेरी करती रहती है. ठीक है ना. तो इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि थीटा इक्वल्स टू, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x. ठीक है. एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैट्रिक में भी यही पढ़ते हैं कि एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x. नाउ व्हाट इज दिस y? This y is the imaginary of the complex number, and what is this x? This is the real part of the complex number. Okay, तो ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, यानी ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में वेरी करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर लेट्स से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो व्हाट विल बी माय एंगल? इट विल बी थीटा. इज दैट क्लियर? और अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो और अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो और आप इसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करो तो फिर क्या होगा एंगल? इट विल बी पाई माइनस थीटा. ठीक है, ऐसा ही होता है ना. ये पूरा का पूरा जो होता है ये पाई होता है, इसमें से आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि पाई माइनस थीटा. इज दैट क्लियर? इसको वैसे तो जो एलाइड एंगल्स होते हैं उसमें ये भी बताया जाता है कि या आप इसको पाई माइनस थीटा कहते हैं इस एंगल को, या आप इसको पाई बाय 2 प्लस थीटा कहते हैं. ऐसा ही है. ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हम इसको पाई की टर्म्स में लिखेंगे. अभी आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम क्यों इसको पाई की टर्म्स में कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. अब अगर आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम फिर आपकी थीटा की क्या वैल्यू होगी? आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो उस टाइम आपकी थीटा की वैल्यू होगी पाई प्लस थीटा. ठीक है. सिमिलरली अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, ठीक है, यानी अगर आपने उसको आर्गेन्स डायग्राम के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट किया है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फिर आपका एंगल क्या बनेगा? वो आपका बनेगा 2 पाई माइनस थीटा. ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि इसकी जो आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो वेरी करती जाती है 0 से लेकर 2 पाई तक. ठीक है. लेकिन अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, यानी कि अगर मैं इसके लिए क्या है कि एक इंटरवल मैं कहूँ कि इस थीटा की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, माइनस पाई टू पाई. ठीक है ना. माइनस पाई टू पाई, यानी कि इफ वी set the interval, if we fix the interval for the value of theta between minus pi to pi, then this uniquely determined theta is known as principal argument. Is that clear? ठीक है. आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है. लेकिन अगर आप अपने थीटा की वैल्यू को, ठीक है, आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इसकी वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में रहनी चाहिए. ठीक है ना. माइनस पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में रहनी चाहिए. ठीक है. तो फिर उस टाइम हम लोग थीटा को कहेंगे
कि ये इसकी वैल्यू यूनिक है और इस थीटा को हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है. लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. Dear students, if we fix the interval for theta between minus pi to pi, यानी कि पाई की अगर थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई टू पाई के बीच में ही आनी चाहिए, तो उस वक्त हम थीटा को कहते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया फिर तो ठीक है, जाहिर है फिर तो उसकी वैल्यू माइनस पाई टू पाई के बीच में ही आएगी. लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम प्लॉट करें और वो थर्ड क्वाड्रेंट में या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो उस वक्त फिर हम क्या करेंगे? उस वक्त क्या हम थीटा नहीं कैलकुलेट करेंगे? उस वक्त क्या हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? क्या ट्रिक हम यूज करेंगे कि हमारा थीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो माइनस पाई टू पाई के बीच में आ जाए. ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर जो है मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगी, उसके जरिए से मैं आपको उसको आंसर करती हूँ. ओके, सो आर्ग्यूमेंट भी एक एंगल है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी एक एंगल है. बस फर्क दोनों में इतना है कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसमें हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं. ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स से मैंने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसको मैंने जब प्लॉट किया, ठीक है, तो वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. ठीक है, वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि वो इस तरह से आ गया. ठीक है, अब मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रही हूँ ना. ठीक है, इस तरह से मैं मेजर कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरा एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा. सिमिलरली अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट मुझे को कैलकुलेट करने के लिए कहता है और मैं उसको कैलकुलेट करती हूँ और मेरा जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको प्लॉट करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको देखना होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करे. लेट्स से हमने प्लॉट किया और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल को मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा ही लोगे आप उसको, यानी कि जो आपका आंसर आएगा आप वही लिखोगे. ठीक है, अब लेट्स से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि इस जगह पे वो लाई कर रहा है. ठीक है, आप एंगल को किस तरह से मेजर कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो. ठीक है, तो अब आपका जो आर्गुमेंट होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस थीटा. ठीक है, सिमिलरली जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसको किस तरह से फिर कैलकुलेट करोगे? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको भी जी हम लोग यही लिखेंगे कि हमारे थीटा की वैल्यू है पाई माइनस थीटा. हमारा एंगल जो है उसकी वैल्यू है पाई माइनस थीटा. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा एंगल है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट. ठीक है, और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट. ठीक हो गया. अब लेट्स से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो आर्गुमेंट निकालने में तो कोई मसला नहीं है. आर्गुमेंट तो हम वैसे ही निकालेंगे. ठीक है, जैसे हम निकालते आते हैं बचपन से, जो हम एंगल निकालते होते हैं, ये हमारा रियल एक्सिस है. ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा? पाई में थीटा को आप ऐड कर दें. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये चीज लिख दूं, अगर मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है. ठीक है, ये बात एक दफा ध्यान में रख लें कि थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से लेकर पाई तक है. ठीक है ना, माइनस पाई और पाई के बीच में हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई है. ठीक है ना, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है क्योंकि यही फर्क है आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में. ठीक है, अब लेट्स से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी इसका एंगल जो है वो तो ये बनता है कि पाई प्लस थीटा. तो ये तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाई नहीं करेगा. फिर तो इसका मतलब तो ये हो कि हमने तो ये कहा हुआ है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो एंगल है वो पाई और माइनस पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एंगल जो है वो बड़ा आ गया, पाई से बड़ा आ गया, यानी पाई प्लस थीटा बन गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जो है वो तो थीटा से पाई से बड़ा आ गया, यानी कि पाई प्लस थीटा आ गया. ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो एंगल है वो पाई और माइनस पाई
बीच में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जब एंगल क्लॉकवाइज लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जब आप कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो उसकी वैल्यू, कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज क्लॉकवाइज ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करती हूँ तो उसकी वैल्यू बनती है पाई प्लस थीटा। वो आर्ग्यूमेंट तक तो बात ठीक थी, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में ये तो बड़ा नंबर आ गया, ये तो इस इंटरवल में लाए ही नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से आप नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर लेते हैं, इस तरह से मेजर कर लेते हैं रियल एक्सिस से, ठीक है। अब अज्यूम कर लो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू होगी इस एंगल की, इस एंगल की वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा। लेकिन आप चूंकि क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या वैल्यू बन जाएगी, थीटा माइनस पाई। अब लाई कर रहा है ना इस इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो जब भी आपका एंगल यानी कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा और आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आप एंगल को क्लॉकवाइज लेके चले जाओ, ठीक है। अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज लेके चलोगे तो सबसे बड़ी बात उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और वो इसी इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रही हूँ, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रही हूँ तो तब मेरा एंगल बनेगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। एंगल मेरा क्या बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, और मैं रियल एक्सिस से मेजर कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी ये मेरा एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, तो अगेन आप देखेंगे ये तो इस इंटरवल में ला ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो इस इंटरवल के बीच में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है, हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। इसको मिटा देते हैं सारे को, ठीक है। अब जब बताओ, अब देखो इसको जब क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो इस तरह से करोगे ना। अब मुझे बताओ अब एंगल क्या बन गया, माइनस थीटा, ठीक है ना। यानी कि जितना, यानी कि मैं आपको समझाती हूँ, देखिए जब भी आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे हो और आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ गया, ठीक है, अगर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया तो जितना सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल था ना उतना ही एंगल ले लो, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो। इज दैट क्लियर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ गया तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाते हो ना उतना ही एंगल बनाओ, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, बस ये फर्क है। अब मैं इन सबको कंबाइन करके एक चार्ट बना देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दोनों एंगल है, दोनों की वैल्यूज वेरी करती रहती हैं। एंगल है ना किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, फर्स्ट में जा सकता है, सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहीं पर इसका एंगल बनेगा, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि थर्ड और फोर्थ के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी वैल्यू को माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें एंगल को क्लॉकवाइज लेके चलना पड़ता है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि एक चार्ट बना देती हूँ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंबाइंड चार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, यू कैन सी कि जो हम आर्ग्यूमेंट तो खैर सिंपल होते हैं, वो आप लोगों को पता होगा कि ये पाई माइनस थीटा इधर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है, इसी तरह से थर्ड में पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, ये तो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरह से आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क है कि जो एंगल आपने, जैसा कि हमने इसमें
-π to π के बीच में, ठीक है, -π to π के बीच में। इसीलिए हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, ठीक है। जितना एंगल आप सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हो उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में लेना, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। जितना फर्स्ट में लेते हो उतना ही फोर्थ में ले लो, लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन अब हम ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। Okay, students, these are the steps to calculate the principal argument of any complex number. First of all, you have to plot your complex number. Then you have to calculate this angle theta, right? After that, identify your quadrants and write your final answer according to this chart of principal argument, ठीक है। अच्छा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ये मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। कि ऐसा होता है ना कि 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये आपका होता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, ठीक है। साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है, इसी तरह से tan एंड cot, ठीक है, ये 6 होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास साइन और उसका इनवर्स यानी कि कोसाइन जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, ओके। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos and its inverse, that is secant theta, is positive, ठीक है ना। After school the cinema, there are different ways to remember this, ठीक है। तो इसके अलावा ये चीज़ है। और दूसरी बात कि अभी जब आप लोग को मैं जब कोई क्वेश्चन दूंगी तो उसमें आपने पोलर फॉर्म, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लिखते हो तो उसमें आप x को किसके इक्वल रखते हो, cos थीटा के इक्वल रखते हो, ठीक है, और y को किसके इक्वल रखते हो, साइन थीटा के इक्वल रखते हो। ये सारा बेसिक नॉलेज था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आप लोगों को पहले से फर्स्ट ईयर में आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इन स्टेप्स को देखते हुए, ठीक है। सपोज आई एम गिवन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ओके, 1 प्लस आयोटा। तो अब मुझे what I have to find, I have to calculate the principal argument, ठीक है। PA means principal argument, ठीक है। तो what will be my first step? Plot the complex number, okay. We will plot it according to our first step. We will plot it, ठीक है। This is my real axis, this is my imaginary axis. तो this is 1 and my imaginary part is also 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। नाउ व्हाट इज माय सेकंड स्टेप? अकॉर्डिंग टू माय सेकंड स्टेप आई हैव टू कैलकुलेट द एंगल थीटा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ what is y? Y is 1. What is x? X is also 1. So tan inverse of 1 is, all of you know, it is equals to pi by 4, ठीक है। अब वो कह रहे हैं identify the quadrant. What is your अब हमने इसको ये बताना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि साइन की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और कॉस की x की वैल्यू देखें क्या है, 1 है, और इसी तरह से y की वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है। x को मैंने क्या बोला था, क्या लिखना है, साइन थीटा। y को क्या लिखना है, सॉरी, x को लिखना है कॉस थीटा, y को क्या लिखोगे, साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 यानी कि दोनों पॉजिटिव है। दोनों कहाँ पॉजिटिव होते हैं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका जो क्वाड्रेंट बना है वो कौन सा बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। नाउ योर फोर्थ स्टेप,
राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अच्छा, अब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो व्हाट विल बी माय एंगल, इट विल बी थीटा, यानी कि जो एंगल आया बस वही होगा। सो माय प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी थीटा, यानी कि पाई बाय 4। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल, माइनस आयोटा -1, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, माइनस आयोटा -1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि इसको प्लॉट करें आप। ठीक है, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ठीक है, पहला स्टेप ये था कि इसको प्लॉट करें। जब हम इसको प्लॉट करेंगे, एज यू कैन सी रियल और इमेजिनरी दोनों जो है वो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 यहाँ होगा और -1 यहाँ पर। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ है, वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज लाइंग इन नाउ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना? तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या था, calculate theta, theta is equals to tan inverse of y over x this will be again equal to pi by 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि identify your quadrant, as you can see that x equals to -1, y equals to also -1, यानी कि cos थीटा जो है वो इक्वल है -1 के, और जो साइन थीटा है वो भी इक्वल है -1 के। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्या है कि दोनों ये हमारे पास माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास बनता है। वैसे तो जब आप इसको प्लॉट करते हो तब भी आपको पता चल जाता है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा बन रहा है। अब हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप था वो था कि आप अपना फाइनल आंसर इस चार्ट को देखते हुए लिखें। तो व्हाट विल बी माय प्रिंसिपल आर्गुमेंट, it will be minus pi minus theta, okay, and minus pi minus theta क्या था, pi by 4। ठीक है, तो it will be equal to minus 3 pi by 4। okay, so my angle is minus 3 pi by 4। it is same as 3 pi by 4, okay, it is same as 3 pi by 4, but this minus is showing that the angle is in the clockwise direction, right? So I hope कि आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स कैलकुलेट करने का स्टेप जो है वो आ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करके दें, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करके दें, तो आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट आपके पास बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट था ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा क्या था, पाई बाय 4। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन और आप उनका आर्ग्यूमेंट लो तो आप उसको लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसी तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, इसी तरह से Z पावर m का आर्ग्यूमेंट होगा आपके पास, यानी पावर जो है वो जंप मार के यहाँ आ जाएगी, m आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस इसमें आपने एक एंगल को ऐड करना होता है। ठीक है, 2k pi, and similarly argument of the z bar, what is this z bar, this is the conjugate of the complex number। for example, if you are given with this complex number x plus iota y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। आप इन प्रॉपर्टीज को देख के मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये किस फंक्शन की प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रही हैं। ठीक है,
है, एक फंक्शन है मैथ्स में, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलरली यही है, ठीक है। वो फंक्शन है, मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। वो फंक्शन है आपके पास लॉग का फंक्शन, ठीक है। आप लोग ऐसे ही करते हो ना कि लॉग ऑफ, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऐसे ही करते हो ना, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई विद द बेस 10, ऐसा ही होता है। इसी तरह से अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो जब आप उनका लॉग लेते हो तो आप उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है। पावर में भी आपके पास लॉगरिथम में यही रूल यूज होता है। और इसी तरह से बल्कि ये प्रॉपर्टीज को छोड़ दें, बाकी तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। Students, that was all about today's lecture, and we have learnt about the argument of